السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب کہیے کیا حال احوال ہیں, کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. اور جناب آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ. تو سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں جو ہے وہ ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کر سکی. اس کی وجہ یہ تھی کہ میری طبیعت تھوڑی سی خراب تھی اور میں ریکارڈنگ نہیں کر سکی. جب ایپیسوڈ ریکارڈ نہیں ہوئی تو اپلوڈ کیسے ہوتی, تو اسی وجہ سے جو ہے میں کل ایپیسوڈ ریکارڈ کر کے اپلوڈ نہیں کر پائی. اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. بڑھتے ہیں اب نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب. تو جناب اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے سیما ایاز احمد نے. ناول کا نام ہے چراغ آخر شب. مصنفہ ہیں رفعت ناہید سجاد. قسط نمبر 8. وہ برق رفتاری سے پھلکا لے کر واپس آتی اور پھرکی کی طرح گھوم کر پلٹ جاتی. جیسے باورچی خانے میں ماموں اللہ بخش مصروف تھے. وہ محض ان کے چھوکرے کا کام کر رہی تھیں, لیکن جتنی مرتبہ بھی کھانے والوں کے درمیان آتی ان کی آنکھوں سے بے اعتمادی چھم چھم برستی. یہ سب گھر والے مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں اور کیوں چھپا رہے ہیں؟ میں نے اس کو کہیں دیکھا تو ہے. شاید رشتے کا کوئی سلسلہ ان بچیوں میں سے کوئی. لیکن نہیں, اول تو اتنی بڑی بات پوشیدہ نہیں رکھی جا سکتی. پھر اس گھر کی لڑکیاں اس نیت سے پیش بھی نہیں کی جاتی. کو بظاہر اس میں کوئی برائی بھی نہیں, دنیا میں یوں ہی چلتا ہے. دنیا دیکھے بغیر دنیا کو سمجھنے کا دعویٰ ان کا خوب تھا. پتہ نہیں کیسے بیٹیاں بیاہیں گے میاں عباس, ہر معاملے میں تو ان کی خودداری آڑے آ جاتی ہے. انہوں نے اگلی روٹی بھی بے خیالی میں اس کی پلیٹ میں رکھتے ایک چوری کی نظر کی. لڑکا ہے تو اچھا, پر جانے یہ لوگ اسے کہاں سے اٹھا لائے ہیں. بزرگ اور قابل احترام خاتون, مگر شک نے ان کی شکل کو کس قدر مسخرہ بنا دیا تھا. وہ بھی جیسے بے جانے بے بوجھے شرارت میں اپنے ساتھیوں کا حصہ بن گیا. آپ آواگون پر تو یقین نہیں رکھتی؟ فاروق نے نہایت سنجیدگی سے ان سے سوال کیا تھا. مجھے کیا پتا وہ کیا ہوتا ہے. اپنی کم علمی پر فخریہ مسکراتے انہوں نے غور سے کہا. نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ یہاں سے وہاں تک پھسلی, جیسے اینٹوں کی قطار پہ کسی نے پہلی اینٹ کو دھکا دیا ہو. کریم بھی؟ اماں نے گلا کھنکار کر بڑی مہارت سے میز پر نظر گھمائی. دہی نہیں رکھا؟ کیوں نہیں رکھا, یہ کیا پڑا ہے؟ او ہاں سوری, رکھا تو ہے. کسی خواہش کے بغیر انہوں نے چمچہ بھر دہی اپنی پلیٹ کے کونے میں انڈیلتے کریم بھی کی طرف دیکھا. گو وہ اماں کی بہت تابع نہیں تھی, لیکن جب اماں ان سے اپنی مرضی منوانے پر آ جاتی تو کسی ایک کو تو ضد چھوڑنی ہوتی. کریم بھی شاید کچھ کم ضدی تھی, بس وہی ایک شکست کا لمحہ جس کی مروبیت میں وہ اپنا محکمہ جاسوسی وہیں چھوڑ کر پلٹ گئیں. مقصد پورا ہو گیا تھا. اماں کی ہنرمندی پر سب زیر لب مسکرائے. آپ آئی بھی. اصل میں کریم بھی رائے دینے میں خود مختار ہیں اور ہم میں سے کسی کی ضرورت نہیں کہ انہیں کچھ کہہ سکیں. اماں کی معذرت میں کریم بھی کے لیے بچوں جیسا سہم تھا. وہ کب کیا کہہ دے انہیں کون روک سکا ہے. وہ کسی سے مخاطب نہیں تھی, لیکن فاروق کو لگا یہ بیان بطور خاص اسی کے لیے ہے. وہی ایک مزاج نا آشنا وہاں موجود تھا, لیکن وہ کیوں تھا اب تو وہ خود بھی یہ سمجھنے سے عاجز تھا. فاروق نے پلیٹ پر جھکا سر ایک خفیف جنبش سے اوپر کیا اور کسی کی طرف بھی بالخصوص نہ دیکھتے سامنے والی دیوار سے کہا. ان کا قصور نہیں, کبھی ہوتا ہے, ہمیں لگتا ہے یہ چہرہ شناسا ہے. بعض چہرے ایسے ہی ہوتے ہیں. ایک مرتبہ عبیر نے اپنے بچپن میں کسی محفل میں جنرل ضیاء کو دیکھا. وہ بھاگ کر ان کے پاس گئی. انکل آپ ٹی وی پر خبریں پڑھتے ہیں نا؟ اور میری حماقت دیکھو, مجھے لگا بچپن میں یہ شاید عقل والی تھی. جمال نے رضا اور عثمان کے حملوں سے نکالتے سر کی طرف دیکھا. جیسے بعض جملے سنے ہوئے لگتے ہیں, کبھی کوئی بات کرے تو لگتا ہے یہ بات پہلے بھی اسی طرح ہوئی تھی, بلکہ مخاطب ہو بہو وہی جملہ بولتا ہے جو آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے سر؟ کیا کہا جا سکتا ہے, سر نے سنجیدگی سے کہا. انسانی دماغ بڑی پیچیدہ مشین ہے, لیکن اس وقت تو کریم بھی کی مشین انتہائی بوسیدہ ہو چکی ہے. حمیرہ نے ڈونگا کھسکاتے تقریباً سرگوشی میں کہا تھا. ایسی کسی جگہ جہاں سرا باس و مسخریاں رضاکارانہ طور پر ممنوع تھیں. لیکن آج تو سالگرہ تھی, وہ بھی آپائی کی. گو اس گھر میں کسی اور کی سالگرہ منانے کی کوئی روایت نہیں تھی, پر تبصرے کے بغیر شاید وہ جی بھی نہیں سکتے تھے. ہم جب بھی کسی سے پوشیدہ کوئی جملہ بولتے ہیں, جس سے بولتے ہیں وہ سنے نہ سنے, جس سے چھپایا جا رہا ہو وہ خوب ہی پکڑ لیتا ہے. سر عباس نے ایک تحدیدی نظر ڈالی اور واپس پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئے. کسی کی سادگی اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو بہر کیف وہ قابل گرفت چیز نہیں.
दादी अम्मा ने अपने आप में गुम झुर्रियों भरा चेहरा उठाकर अपने बेटे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर हल्की सी नागवारी की झलक भी उन्होंने भांप ली थी। उनके बेटे के खिलाफ मिजाज क्या हुआ, किसकी मजाल हुई? गीबत कर रहे हो? दादी अम्मा ने बच्चों की तरफ शक से देखा। अचानक सभी हत्तल मकदूर इस बहस या गीबत में हिस्सा लेने लगे, सिवा सर अब्बास के। उन्होंने गिलास मुंह से लगाते हुए एक सानिया के लिए गौर से नवारिद की तरफ देखा। करीम भी का शक्की होना मुसल्लम, लेकिन इतनी वो सिठियाई हुई नहीं थी कि उनके बयान को यकसर नजरअंदाज कर दिया जाता। उन्होंने गिलास वापस रख दिया। मेरा ख्याल है मैं चलूं। अल्लाह आपको बच्चों की खुशियां देखना नसीब करे। सालगिरह मुबारक। आधा खिताब उनका अमूमी और मेज के गिर्द बैठे सभी लोगों के लिए था। बकिया आधा आपाई से मखसूस करके वो रोशनी और खुशियों की महफिल छोड़कर खड़े हो गए। आपाई मौद्दिब बैठी मुस्कुराती रही। खाने के बाद फुर्सत हो तो मेरे कमरे में आना। उन्होंने किसी को मुखातिब किए बगैर दावत आम दी थी, जिसमें नए भी थे पुराने भी। उनके घर और कमरे के दरवाजे सभी के लिए खुले थे। कुर्सी वापस मेज के नीचे खिसकाते हुए पलट गए। अबीर ने उनको जाते देखा। उनमें दुनियादारी रस्मी दिखावा कम कम ही था। मूड में होते और फुर्सत होती तो खाने वालों के साथ देर तक बैठते। कुछ पढ़ रहे होते तो सिरे से खाने के लिए आते ही नहीं थे। उन्होंने खुद को कभी किसी के लिए मशरूत नहीं किया था। उठ जाने का मतलब किसी की तौहीन भी नहीं होती, सो उनके हर मौसम हर मिजाज से खूब आगाह थे। नया फल शायद मानूस ना हो, बहर कैफ उसको मानूस होना चाहिए। वो उठे तो मेज के गिर्द बैठे लोग एहतरामन खड़े हुए। बैठो बैठो, खाना खाओ। करीम भी बावर्ची खाने से किसी नए डोंगे के साथ दाखिल हुई। लो मियाँ अब्बास चल दिए, और भी सुरैया कहाँ रह गई? तुमने तो कहा था वो तुम्हारे साथ हैं। यह सवाल भी करीम भी की तरफ से आया था। ऐसा हर सवाल जिसके गिर्द एक खोपड़ी और दो हड्डियां हो अमूमन करीम भी की इख्तरा होती थी। हालांकि उन्हें खुद सवालों से चिढ़ थी। कितनी देर खामोशी रही। हर शख्स जवाब की जिम्मेदारी दूसरे के कंधे पर डालना चाहता था। वो क्यों चली गई? ये सवाल या निशान एक बहुत अहम बयान से मंसूब था। अपने अपने तौर पर जाती राय कायम करने का उन्हें पूरा हक था, लेकिन उस राय को फैसले के तौर पर सुना देने की किसी में हिम्मत नहीं थी। शायद मैं आप लोगों का मजीद साथ ना दे सकूं। हुमैरा ने हुंकारा भरा। पता नहीं उसका मसला क्या है, लोगों को चौंका देने की ख्वाहिश। जब शमा आगे आगे भागी जा रही हो तो परवाना उसके पीछे दौड़ भी लगाता है या नहीं? ये अजीब ट्रेजेडी है। शमा दौड़ते में मुड़ मुड़ कर भी देखती है, और जब मुड़कर देखती है और पाती है कि उसका पीछा नहीं किया गया तो वो रुक जाती है, पलट आती है, फिर से स्टार्टिंग पॉइंट, फिर से सीटी बजने की मुंतजिर। ये दौड़ तो रोज होती है। शायद मैं आप लोगों का मजीद साथ ना दे सकूं। अबीर ने जता जताकर अदा किए गए जुमले में मानों की परतें खोलनी शुरू कर दी। कौन कौन शामिल है लोगों में? -1 और उस समेत। आज के दिन मजीद या मजीद कभी नहीं। क्या आपने इस जुमले को कोई अमली जामा पहनाने का इरादा है, या बस उसने कह दिया और सबने सुन लिया? अबीर के पास तो हमेशा से सवाल ही थे। आज तक तो उसको अपने किसी सवाल का जवाब मिला नहीं था। उस्मान ने इस जुमले को इस बेपरवाही से सुना था जैसे वो उसका मुखातिब था ही नहीं, और उसके चट्टान जैसे चेहरे पर कोई लकीर ऐसी नहीं थी जो उसके अंदर की दरारें खोलती हो। उस वक्त से अब तक बाज़ाब्ता लफ्जों में अदा करना तो दूर, वो जैसे इस सोच से भी भाग रहे थे। आज उन्होंने हर बचकाना मजाक कर लिया था। करीम भी का सवाल सामने था और जवाब की मुंतजिर अम्मा थी। कितनी ही तवील खामोशी के बाद रजा ने जैसे उस जुमले को कांधा दिया। वो चली गई। शायद उनको देर हो रही थी। देर भी तो तुम लोगों की तरफ से हुई। मुझसे तो उन्होंने शीर खुरमा की फरमाइश की थी, तब तो ऐसा कुछ नहीं कहा। शीर खुरमा तो बहरकैफ खाया जाएगा करीम भी। उस्मान ने उनकी तरफ तशफ़ी की नजर डाली। शायद उनकी ख्वाहिश थी शीर खुरमा बने, वो खाएं, ये मंसूबे में शामिल नहीं था। ये कैसी बात हुई? किसी वजह के बगैर करीम भी उदास हो गई। हाँ, गरीब ने किस शौक से शीर खुरमा बनवाया। कभी कभी वो खुद भी उसके बहुत खिलाफ हो जाती थी। फिर उनको लगता कोई गिराह सी है उसके जहन में अटकी हुई जो उसके साथियों को दिखाई भी नहीं देती। वो खुद भी ना खोल सकती है ना काट फेंकती है। ऐसी ओल जलोल बातें हमसे तो करो नहीं। वो उसी उदासी में खफा होती हुई बोली। मैंने बतौर खास इसमें किशमिश नहीं डाली, उनको किशमिश पसंद जो नहीं। हम उनके घर भी जुआ देते हैं, इसी बहाने हम उनका घर भी देखाएंगे। वो हंस रहा था या हंसने की कोशिश। किसी ने भी रवादारी में पलटकर उसका चेहरा देखने की हिम्मत नहीं की। असल में वो वहां से उठी तो हमारे साथ चलने को थी, फिर कोई फोन आ गया या इतला या कोई ख्याल, उन्होंने वापसी का इरादा कर लिया। जमाल झूठ को सच में लपेटकर कहानी बनाते कहीं से भी झूठा नहीं लग रहा था।
लेकिन इतनी जल्दी गई कि माजरत का फोन भी ना कर सकी। शायद वो चाहती जरूर होंगी। और जाते जाते सीढ़ियों पर अपना जूता गिरा गई। अबीर ने लुकमा दिया। उनको जो थोड़ा सा एतबार आया था वो इस बेसर पैर के आखिरी जुमले से जाता रहा। आज ये कुछ ज्यादा ही शोखियां दिखा रहे हैं, अम्मा और करीम भी ने बेक वक्त सोचा था। कोई नाराजगी हुई उनकी तुम में से किसी से? अम्मा को कौन बहला सकता था? वो करीम भी नहीं थी। वो उस्मान से मुखातिब जरूर थी, लेकिन देखती ही किसी और तरफ थी। मालूम नहीं अम्मा। वो जब वहां आई तभी उनका मिजाज नॉर्मल नहीं था। रजा ने तसल्ली से गुफ्तगू का सिरा पकड़ा। फिर वो जितनी देर बैठी रही किसी बेचैनी का शिकार लगती थी। वो अभी किसी ट्रिप से वापस आई थी और उठते वक्त जो फिक्रा उन्होंने बोला वो आखिरी मुलाकात का ऐलान लगता था। लेकिन कोई बात नहीं, वो कल परसों फिर आ जाएंगी। अम्मा का दिल और जुबान बेक वक्त मचले। जो ख्याल कूंदा था उसको जुबान की नोक तक लाते उन्होंने रोक लिया। गो मुंह आई बात को रोकने की महारत तवील मशक के बावजूद उनसे कभी नहीं हो सकी। उनके दरमियान एक अजनबी बैठा था जिसको इस वाकये का इल्म ही नहीं था। वो इंतहा उसके सामने हुई जिसकी इब्तदा से वो बेखबर था। उनको सुरैया बेगम कतई पसंद नहीं थी। अगर उनके बेटे को धचका ना लगे तो ये ट्रेजेडी दरअसल खुशकुन खबर थी। लेकिन पता नहीं उस्मान के अंदर क्या है, कौन खबर ला सका। एक समझदार लड़के को महज औलाद होने की वजह से अहमक समझ लेना तो कोई बात ना हुई। कुछ देर को खामोशी सरसराई। अजनबी शख्स ने खुद को दरमियान में ठूंसा हुआ पाया। दोनों बुजुर्ग खवातीन जिनमें से एक दादी अम्मा और एक ताई थी कब की जा चुकी थी। मददगार खातून बावर्ची खाने में कुछ खटर पटर कर रही थी और एक खतरनाक निजी मसला जेरे बहस था। जिस मसला को कोनों खुदरों में हल करना चाहिए था वो धड़ल्ले से महफिल में जेरे बहस था। शायद इसीलिए वो खातून जो वजह बहस थी खफा होकर चली गई, महज एक बयान जारी करके। हर बंद के पीछे एक रेला होता है। कभी रिस रिस कर निकलता है, कभी सर पटकता है और पाश पाश करता सब कुछ बहा ले जाता है। यहाँ वो कुछ होता है जो कहीं कम ही होता है। चले, हमेशा की तरह भले मानस रजा ने हालात अपने काबू में करने की कोशिश की। सर कमरे में हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अचानक ही मेज खाली हुई और लोग मुंतशिर हो गए। रजा का जुमला जैसे लाठी चार्ज था। आप आई अपनी सालगिरह और इस कदर उम्दा दावत के बावजूद दुखी हो गई। उनको सुरैया पसंद नहीं थी, गो इसमें जाती पसंद नापसंद कहीं नहीं आई थी। उन्होंने उसे कबूल लिया था जब रजा ने एक दिन उनको उस्मान और सुरैया के बारे में बताया। से वो उसकी आने वाली बहू की तरह बतौर खास खातर मदारत करती थी। अंदर से नई टिकोजी निकालकर चाय दानी पर रखती। चमचा उसके सामने रखने से पहले कुछ नहीं तो अपने दुपट्टे से सही रगड़ कर चमका कर देती। प्लेटें उसके सामने बढ़ाती। फिर जब नायला ने किताब पढ़ते सरसरी सर उठाकर बेफिक्री से बताया कि उनको सुरैया का मिजाज पसंद नहीं, तो उन्होंने उसको वहीं खारिज कर दिया। नायला माँ है, वो कैसे गलत हो सकती है? नायला इंसान भी है कि नहीं, ये उनके रजिस्टर में दर्ज नहीं था। आप आई का जी बहलाने को उनके आगे लूडो रख दी गई, लेकिन अपने बारीक बालों का जोड़ा बनाते उन्होंने उसे रद्द कर दिया। अम्मा ने ऐनक सर पर रखी और फ्रेम उठाकर कशीदाकारी शुरू कर दी। बड़ी ताई के ड्रामे के मंजर और दादी के तस्बीह के दाने एक साथ चले। अबीर और हुमैरा करीम भी की मदद को जा चुकी थी। बर्तनों का एक ढेर सिंक में जमा था। इंसान भी अजीब चीज है, हर हादसे से गुजरकर फिर शुरू हो जाता है। करीम भी देगचियों के ढक्कन उठाए बड़ी सी प्लेट के मुख्तलिफ कोनों में चचा अब्दुल अवीज के क्वार्टर में भिजवाने के लिए सालन निकाल रही थी। उनके हाथ में डोई और इख्तियारात दोनों थे। कोफ्तों का शोरबा और खुश्क भिंडियां गडमड हो गईं, तो उन्हें परवाह नहीं थी। गो उनकी हिदायत थी कि पहले सालन उनके क्वार्टर में भेजा करें, सलीके से ट्रे लगाकर जैसे किसी इंसान को खाना दिया जाता है। मगर इतनी बेईमानी तो वो अपना हक समझा करती थी। पहले घर वाले और मेहमान तो खा लें, मियाँ अब्दुल अजीज का क्या है, जाता रहेगा खाना। वो सारा दिन करते भी क्या है? खीरे लाए तो हरा धनिया भूल गए, दोबारा भेजा तो फालतू पैसे देकर आ गए। बैठे बीड़ी पी ली या हुक्का गुड़गुड़ा लिया। हालांकि वो सरासर बहुतान तराशी कर रही थी। चचा अब्दुल अजीज और करीम भी तकरीबन एक ही साथ इस घर में दाखिल हुए थे और कमाबेश एक ही दर्जे पर फायज यकसा एहतराम दिए जाने के बावजूद दोनों एक दूसरे को यकसा ही नापसंद करते थे। इस फर्क के साथ कि चचा अब्दुल अजीज जो है और जैसा है की बुनियाद पर अपनी जिंदगी पर शाकिर थे, मगर करीम भी को अपने माजी के कुछ हिस्सों से सख्त इख्तलाफ था। वो अक्सर और बेशतर उनको दोहराकर उनमें से गलतियां निकालती रहती थी। हर अलमिया कहानी जैसे उन पर लिखी गई थी। वो किसी किरदार को रोता देखकर तकदीर का गिला एक तवील आह की सूरत में भरती।
घिसे पीटे मकाल में उनकी रूह खींच लेते। कितनी देर वो उन पर सर धुनती। करीम भी ने कहीं से सुना था उनकी अपनी मंजूर नजर कहानियां लिखती है। को उनके जमाने में कहानी लिखने वाली औरतों को नापसंदीदा नजरों से देखा जाता था। कहानियां छुपकर पढ़ी जाती थी। सिर्फ बहिश्ती जेवर पढ़ने की इजाजत थी और इजाजत देने वालों ने शायद खुद कभी नहीं पढ़ा था। मुसव्विर गम खैरी बरादरान औरत के ऐसे किस्से बयान करते कि रोते रोते हिचकी बंध जाती, और ऐसे में कोई भली बीबी किताब पढ़ते पकड़ी जाती तो मुजरिम ठहरती और सजा के तौर पे उसकी फौरी शादी कर दी जाती। वो भी कोई औरत हुई जो लोगों के इश्कों के किस्से पढ़े। ऐबों को छुपाने का हुक्म है, बजाते खुद एक ऐब थी, लिहाजा पोशीदा थी। ऐसे खुफिया माहौल में पल कर भी करीम भी को यकीन था उनकी जिंदगी में कुछ न कुछ फिल्मी जरूर है। कभी मेरी भी कहानी लिखो, अबीर से इल्तिजा करती। वो गड़बड़ा जाती। मैं कहानियां तो नहीं लिखती, ड्रामा लिखती हूँ, वो भी यूं ही सा होता है। चलो फिर ड्रामा ही लिख दो, यूं ही सा। क्या है आपकी कहानी? वो अपना स्क्रिप्ट छोड़कर उनकी तरफ मतवज्जा होती। लिखो बेटी, मैं 11 साल की उम्र में बड़े रामपुर में पैदा हुई। जी? वो शशतर उनकी तरफ देखती। बस बेटी, वो आह भरती। पैदाइश उस दिन होती है जब आपकी आंख में पहला आंसू आता है। ये वो तारीख है जब मेरा निकाह 40 साल शख्स से हुआ जो 2 ही साल में मुझे छोड़ गया। करीम भी चचा अब्दुल अजीज को खाना पहुंचा कर आई तो हुमैरा बर्तनों से फारिग हो चुकी थी। अबीर कॉफी के बीच चमचा से रगड़कर झाग पैदा कर रही थी। करीम भी को काम में जल्दी पसंद नहीं थी। जो काम आराम आराम से हो सकते हैं उसमें जल्दबाजी की क्या जरूरत। उन्होंने हुमैरा की धुली हुई प्लेटों को उलट पलट कर देखा और एकदम कंडम कर दी। जिस दिन घर में खाना होता वो दिन करीम बी के लिए ईद होती थी। सुबह से खाना पकना शुरू होता और पहला निवाला तोड़ने तक पके जाता। सारी रात बावर्ची खाना समेटा जाता। बर्तन धुलकर खुश्क करके वापस अलमारियों में जाते। उस रात कोई चैन की नींद सो नहीं सकता था क्योंकि रात भर करीम बी के हाथों चीनी बाजीगरों की मौसीकी जारी रहती। फ्रिज में बची हुई खुराक जखीरा की जाती। उनका ख्याल था दावत का खाना दावत वाले रोज मजा नहीं देता, अगले दिन देता है। सो वो ऐसी मोमिन थी जो कल के रिज्क के लिए फिक्रमंद थी। शीशे के डब्बों में खाना भरकर प्लास्टिक रैप चिपकाते उन्होंने खुद से कहा, पता नहीं कहाँ देखा था उसको। करीम भी योमल सत पर तो मुलाकात हुई होगी। अबीर ने बर्क रफ्तारी से काफी फेंटते हाथ रोक कर कहा, बन रही है या पाए पक रहे हैं? उस्मान ने दरवाजे पर इस्तादा हर एक को मसरूफ देखा। खुद ही तो कहा था अच्छी हो, अबीर बड़बड़ाई। मगर ये कब कहा था कि ब्राजील चली जाना? उड़ा लो मजाक, करीम भी ने खफा होकर कहा। उस्मान घबरा गया। लेकिन करीम भी, मैंने तो अबीर की बात का जवाब दिया था। मैंने भी तो अबीर ही की बात का जवाब दिया है। फ्रिज का दरवाजा धप से बंद करके मुतमईन हो गई। वो जब घुली मिट्टी के रंग जैसी सुनहरी भाप वाली कॉफी से भरे मग की ट्रे लेकर कमरे में पहुंची तो मुख्तसर से कमरे में लोग अपनी अपनी पसंद की नशिस्त संभाले कॉफी के बजाय सर के लेक्चर में महव थे। कुशन, निचले स्टोर्स, खिड़की की चौखट, जिसका जहां जी समाया वहीं बैठ गया। उनकी यह किताब किसी हफ्त रोजा में छप रही थी। इस मर्तबा उनका चैप्टर सन 76 के इलेक्शन थे। इलेक्शन के फौरी बाद के हालात में तारीख को मसख करके रख दिया। हर आने वाले ने वाकयात को अपनी सहूलत के मुताबिक बयान किया। सच क्या था तोहमात के अंबार में दब कर रह गया। धांधली हुई? धांधली बिल्कुल नहीं हुई। इक्का दुक्का हुई। फिर एक मुनाफिक की तरफ से नाफिज किया गया निजाम। ना निजाम से दिलचस्पी थी ना धांधली से। पता नहीं ऐसे लोग क्या करने आप पर मुसलत हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं फलां साल इस मुल्क में बेईमानी का राज रहा, 40 साल इस मुल्क में ज्यादतियां हुई, 50 साल से ये साजिशों का शिकार है, 60 साल से एक लंबी लकीर। हर 10 साल बाद गिनती बढ़ जाती है। हिसाब ठीक नहीं होता, तारीख दुरुस्त नहीं होती। जब जमाल ने उठकर उसके हाथ से ट्रे पकड़ी तो ना वहां बैठने की जगह थी ना उसका कोई इरादा। हुमैरा पता नहीं कब की अपनी जगह अब्बा के पैरों के पास पीछे कुशन पर बना चुकी थी। अब उसको बैठना भी चाहिए वो नहीं जानती थी, लेकिन जब सुखन तराज अब्बा हो और उस्मान ने उसके लिए सिमट कर जगह भी बना डाली हो तो जाए फरार बची ही कहां। कॉफी की तकसीम के दौरान बहस जरा देर को थमी, लेकिन फिर से सवालों का सिलसिला जारी हो गया। वो उस्मान के बराबर एक छोटे साइज के स्टूल पर बैठी बुत की तरह साकत नन्हे नन्हे सिप लेती रही। हालात बदलेंगे, तब्दीली आएगी, चेहरों की, निजाम की। कोई सुबह आएगी जब उजालों की नवीद मिले। लोग महज सवालों की जद में थे, जैसे हर मसले का हल अब्बा ही छुपा कर बैठे हों। अगला सवाल फारूक की तरफ से आया था, जैसे अचानक उन्हें एहसास हुआ कोई और भी है। आप क्या करते हैं?
میں لکھتا ہوں، اس نے مختصر لیکن دھیما جواب دیا۔ فکشن؟ اس نے محض نفی میں سر ہلایا۔ ابھی یہاں آنے سے پہلے جب بچوں نے مجھے فون کیا اور آپ کو ساتھ لانے کی اجازت مانگی تو وہ آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ ان کی آواز میں اس کی تعریف سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے فخر تھا۔ ایک غیر محسوس سی سرخی اس کے چہرے پر جھلکی اور غائب ہو گئی۔ ذرا نوازی، مہربانی جیسے کسی رسمی جملے کی اس سے توقع نہ تھی، نہ اس نے اظہار کیا۔ میں آپ کی نسل کو بہت فیسینیٹ کرتا ہوں۔ میری طرح اور بہت لوگ ہیں جن کو سن 70 کی دہائی پر رشک آتا ہے۔ سر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا بہترین زمانہ وہ سمجھا جاتا ہے جب پاکستان دو لخت ہوا۔ صرف ایک اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے ہمارا باقی ماضی کیا تاریخ رہا ہوگا۔ وہ کچھ دیر تاریکی میں ڈوبے رہے۔ 10 سالہ طویل ماشاء اللہ کے کئی دور، مریض، اپاہج، نیم پاگل حکمران، ظالم آقا۔ میری پشت پر آج تک ان 5 کوڑوں کے نشان ہیں جو جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے پر میری پیٹھ پر داغے گئے۔ اس نے ہم بے وقوفوں کو یقین دلا رکھا تھا کہ ہمیں کوڑے مار کر وہ دراصل اسلام نافذ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھی فخر سے ان مظالم کو اسلام میں جائز قرار دیتے تھے۔ جاہل ملا مذہب کا ٹھیکیدار تھا۔ FA FSC سیکنڈ ڈویژن پاس بوٹوں والے اداروں کے سربراہ تھے۔ بے انصاف عدلیہ۔ میں نہیں جانتا قرآن میں جو لکھا ہے کہ شہد کی مکھی کو وحی آتی ہے اس کا کیا مطلب ہوگا، لیکن مجھے اعلیٰ عدلیہ کے سربراہ کا جنازہ یاد ہے جس پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا اور جس کا کفن تار تار ہو گیا تھا۔ ہر بڑا ادیب، شاعر، دانشور ملک بدر ہوا۔ ریڈیو ٹی وی کے ایک سے ایک اعلیٰ یا بیان ہوئے یا نوکری سے نکال دیے گئے۔ ہیروئن کے سر پہ دوپٹہ ڈھکا اور یوں اسلام کا نفاذ ہوا۔ اور یہ سب اس لیے تھا کہ ہم نے مارشل لا ختم کرنے کی جدوجہد کی تھی۔ 2 طویل مارشل لاؤں کے درمیان ایک 4 سال کی مختصر مدت کو سراہا تھا۔ اپنے ہیرو سے محبت کرنے کی سزا پائی۔ اس سزا کا سلسلہ ہیرو کے بعد بھی ختم نہیں ہوا۔ ہم وہ نسل جس پر آپ فخر کر رہے ہیں نہ 3 میں تھے نہ 13 میں۔ سوالات ختم ہوئے، فخر سرنگوں ہوا، لوگ گونگے ہو گئے۔ آپ ہماری طرف مت دیکھیے فاروق صاحب، ہم تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بس بہت ہوا، ہم اندھیروں کی آخری نسل تھے۔ وہ یوں اٹھا جیسے روشنی مستعار لینے چلا ہو۔ اجازت دیجیے، میری تمنا ہے ان سب کی طرح آپ کا ہاتھ میرے سر پر بھی رہے۔ تمنا کی تکمیل کا انتظار کیے بغیر وہ ان سے رخصت ہوا۔ کونوں خدروں میں بکھرے خالی مگ ٹرے میں جمع کرتے عثمان نے بے تکلفی سے کہا، ٹھہرو یار، کیا جلدی ہے؟ ضرور ٹھہرتا اگر صبح صبح اسلام آباد نہ پہنچنا ہوتا۔ یقیناً تمہاری کافی بدمزہ تھی، اس نے ابیر کو آگاہ کیا۔ نہیں، تمہاری کمپنی بور تھی۔ حمیرہ کا حافظہ اس کی مدد کو آیا۔ انہوں نے کہا تھا نا، وہ جب کسی جگہ بور ہو وہاں نہیں ٹھہرتے۔ لیکن نہیں، وہ اتنا بور نہیں کہ ہمارے ساتھ بور ہو۔ وہ سب جب ان کی اسٹڈی سے باہر نکل رہے تھے، اس نے لمحے بھر کو ٹھہر کر دوبارہ سر کی طرف دیکھا۔ ان کو جانے کی اجازت دے کر وہ ان سے بے نیاز ان سب کی طرف پشت کیے دیوار میں نصب اپنی کتابوں والی شیلف میں کسی کتاب کی تلاش میں گم ہو چکے تھے۔ اس کو لگا ان کی پشت سے 5 روشنیوں اور نور کے دھارے پھوٹ رہے ہیں۔ اس جگمگ کرتی چراغاں میں وہ چندھیا گیا۔ چھن چھن کر برستی چاندنی کھلی فضا میں درختوں کی چوٹیوں پر جھلملاتی پتوں سے چھن کر زمین پر اترتی اسی طرح جگمگا رہی تھی۔ چچا عبدالعزیز کے کوارٹر سے ان کے عہد کا کوئی اداس دھن والا مایوسی بھرا گیت کھلی فضا میں تیرتا وہاں تک آیا جہاں وہ اس کو رخصت کرنے برآمدے تک آئے تھے۔ بعض دنیں کیسی عزیز ہوتی ہیں، وہ آپ کو اداس کر دیتی ہیں، لیکن اس اداسی میں ایک انوکھی سی خوشی ہوتی ہے۔ حمیرہ پتھر کی ٹھنڈی سیڑھیوں پر دونوں گھٹنوں کے گرد بازوں کا حلقہ بنا کر بیٹھ رہی، باری باری جیسے لمحہ موجود کے سحر کی گرفت میں آتے جو جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ رہا، فاصلوں سے ایک دوسرے سے دور مختلف سمتوں میں رخ کیے۔ چاندنی ان کو بھی گوتی رہی۔ موسیقی بھی کس قدر پریشان کرتی ہے، یہ مستی کا عالم، یہ کھوئے سے ہم تم۔ پنکج کی بھرپور آواز ہوا کی لہروں میں اسرار گھول رہی تھی۔ آواز میں عجیب تاثیر ہوتی ہے، ایک ہی سر، ایک ہی آواز، لیکن مختلف لوگوں کو مختلف کی جاتی ہے۔ ابیر نے ابا کے کمرے کی بند کھڑکی کی طرف دیکھا۔ پردوں اور شیشوں کے پیچھے سے جھلکتی ہلکی روشنی چاند کے سامنے مدھم ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا پتہ نہیں ابا اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے۔ نیم تاریکی میں بکھری چاندنی میں جمال نے اوپر کی سیڑھی سے پاؤں نیچے لٹکائے۔ اسے کسی چیز کا کلک نہیں تھا، ماضی تھا جو خوش اسلوبی سے گزر گیا۔ وہ اس عورت کو جھکی عورتوں کی طرح مشقت میں جتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑ چڑ کرتے دیکھتا تو بہت مرتبہ سوچتا،
اس نے کبھی اس عورت سے محبت بھی کی تھی؟ کیا وہ محبت اب بھی دل میں کسی جگہ سر اٹھاتی ہے؟ محبت شاید پانے کی خواہش تک توانا رہتی ہے، پھر کھو دینے کے اندیشوں سے زندہ ہو جاتی ہے۔ وہ محبت کہیں کسی کونے میں موجود تھی، لیکن وہ اسی عورت سے تھی، آج والی عورت نہیں۔ محبت کے وہ چند دن اس نے حنوط کر کے ان کو محفوظ کر لیا تھا۔ آج بھی جب وہ عورت اسے نظر آتی ہے تو اس کے دل میں کہیں کوئی محبت نہیں جاگتی۔ ہاں، جب وہ پچھلے دنوں کو پلٹ کر دیکھتا ہے تو محبت وہاں موجود ہوتی ہے۔ اس نے وصل پر گانے کی دھن دہرائی، یہ بوندوں کی رم چھم، اونچے تناور درختوں کی اوٹ سے ڈولتا چاند، کچھ دیر اس کی اداس دھن کے ساتھ چہرے پر چھائی اداسی کے ساتھ جھلملایا، پھر اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اس سے ذرا فاصلے پر نچلی سیڑھی پر عثمان نے سب کی طرف دیکھا۔ وہ بچپن سے ان چہروں کو اپنے ارد گرد دیکھتے رہنے کا عادی تھا۔ گو ان میں ایک نیا چہرہ شامل ہوا تھا اور ایک پرانا نکل گیا۔ شطرنج کے مہروں کی طرح بکھر کر بیٹھے، نہ وہ کسی کو مات دینا چاہتے تھے، نہ کسی فتح کے منتظر تھے، لیکن کبھی کسی نے گھوڑے کی مرضی بھی معلوم کی ہے؟ کیا پتا اس کی خواہش 3.5 گھر چلنے کی ہو، یا وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سستا کر جگالی کرنا چاہتا ہو۔ عثمان ایسا ہی گھوڑا تھا، اس کی دوڑ جس کے ساتھ لگی وہ اس سے اول آ ہی نہیں سکتا تھا۔ آج بھری محفل میں جو وہ سب کو، لیکن دراصل صرف اسی کو پیغام دے کر گئی تھی، اس کے پیچھے 2.5 گھر بھی نہیں چلا، اور اس نے جاتے جاتے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، لیکن اپنا پیغام اس تک پہنچا گئی تھی۔ کھوئے سے ہم تم، ہمارا پنکج ملک اپنی بھاری گمبھیر آواز میں بچوں کی سی لاپرواہی سے لوگوں کا نقصان کیے دے رہے تھے۔ عثمان نے گھاس کی قطع سے پرے بے رنگ شکستہ دیواروں سے چمٹی بیلوں کو بے معنی انداز میں دیکھتے کچھ بولنا مناسب نہیں سمجھا۔ بعض دفعہ ہم ایسے سحر میں گرفتار ہوتے ہیں کہ اسے توڑ کر طلسم پارا پارا نہیں کرنا چاہتے، لیکن اندر ہی اندر بڑی خاموشی سے ہمارا وجود ریزہ ریزہ ہوتا رہتا ہے۔ فاروق ایک ٹانگ اوپر والی سیڑھی پر لٹکائے دوسری ٹانگ سے نچلی سیڑھی پر اپنے وجود کا وزن ڈالے بولوں میں گم تھا۔ وہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھا نہیں تھا، لیکن جانے کا کہہ کر گیا بھی نہیں۔ وہ ان سے پہلی دفعہ ملا، وہ محض چند منٹ کے لیے آیا، لیکن ایک طویل وقت سے ان کے ساتھ تھا۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں واقعی پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ کیوں دیکھا جائے تو فاروق نے سوچا، سب کے انٹرسٹ جدا جدا ہیں، لیکن اکٹھے بیٹھے اپنے علیحدہ وجود قائم رکھے بھی وہ ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتے ہیں، جیسے پزل کے ٹکڑے الگ نظر آنے کے باوجود ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ وہ ان کے درمیان پہلی بار آیا اور شاید آخری بھی۔ یوں بار بار آنے کی بظاہر کوئی وجہ بھی تو نہیں، لیکن پیارے لوگ ہیں۔ وہ جمال صاحب ہیں جو بی بی کرتے پھلچھڑیاں چھوڑتے ہیں، سیڑھی پر ایسے بیٹھے ہیں جیسے خواتین موٹر سائیکل کے پیچھے۔ رضا ہے، ذمہ دار، سنجیدہ، اس کو ہر ایک پر فخر ہے، اپنی ماں سے لے کر بک بک کرتی ان لڑکیوں پر، اپنے دوست پر، دوست کے والد پر۔ معلوم ہوتا ہے اس کے حصے میں صرف ذمہ داریاں آئی ہیں، اور ذمہ داریوں پر فخر۔ ابھی کچھ دیر پہلے اسے بتایا گیا تھا کسی رشتہ دار خاتون کی سالی یا نند، وہ جو بھی ہوتی ہے، سے اس کا رشتہ آیا، اور لوگوں کو خدشہ تھا کہ وہ اتنا پیارا بے وقوف ہے کہ آمادہ ہو جائے گا۔ اسے لوگوں نے مشکل سے روک رکھا تھا۔ یہ عثمان ہے، ستون سے کمر ٹکائے اور اپنے چمکتے جوتوں والے پاؤں دور تک پھیلائے گانے کے ساتھ بول دہراتا۔ وہ نہیں جانتا کیا قصہ تھا، جب سنڈریلا اپنا جوتا گرا کر بھاگی تو وہ اس کے پیچھے لپکا کیوں نہیں، لیکن اس کو لگا اس کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا۔ اس نے اسے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ وہ حمیرہ ہے جس نے سب سے پہلے پنکج کو سن کر سیڑھیوں پر چوکڑی ماری تھی۔ وہ خاموش بیٹھے بیٹھے اچانک فلسفی بن جاتی ہے، ایک اہم جملہ بولتی ہے اور ہر اہم فکرے کی داد کی توقع اپنی دوست سے کرتی ہے۔ بے سمجھ سی سادہ لڑکیاں، لیکن دوستوں کی محبت نے ان کو بہت اہم بنا دیا ہے۔ کیا وہ ان سے آج ہی ملا تھا یا زمانوں سے ان کے ساتھ تھا؟ وہ ان کے مزاجوں سے کیسے کس طرح آگاہ ہو گیا تھا؟ وہ کیا چیز تھی جو ان کے درمیان سے اجنبیت ختم کر دیتی تھی؟ اس نے اہم جملے بولنے والے حمیرہ اور اس کی دوست کی طرف دیکھا۔ ان میں سے ایک صلح جو ہے اور دوسری کمان میں تیر تانے ہر وقت حملے کی منتظر رہتی ہے، سوائے آج کے دن کے۔ اس نے اس طرف دیکھا۔ آخر آج کیا ہوا تھا؟ اچانک کسی گھبراہٹ نے اس کو آن گھیرا، اور تھوڑی دیر وہ یہاں کھڑا رہا تو پتھر کا ہو رہے گا، اور وہ پتھر کا ہونے نہیں آیا۔ وہ وحشت سے ٹھہرے ہوئے منظر میں ایک دم اٹھ کر کھڑا ہوا۔ سو اب میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ وہ سرعت سے ان کے درمیان سے نکل گیا، جیسے دیوار میں گڑی فوٹوگراف میں سے مستقل نظر آنے والی کوئی شکل اچانک نکل کر چلی جائے، جگہ خالی خالی چھوڑ کر۔ ارے واہ، عثمان نے بڑی خوش دلی سے کہا، یہ بھی کھسکا ہوا ہے۔
सीढ़ियों से परे बरामदे के पार घर के दरवाजे के दोनों पट एक झटके से खुले। रोशनी का एक रास्ता बरामदे से सीढ़ियों तक बिछता गया। दरमियान में करीम बी का सरापा रोशनी में गड़ी एक फ्रेम की तरह नमूदार हुआ। अरे हाँ, याद आ गया। ए लो मियाँ, तुम वही तो हो जो उस दिन कहते थे मैं मियाँ अब्बास के बचपन का दोस्त हूँ और अचानक भाग लिए थे। कहाँ गया? उन्होंने सीढ़ियों पर बैठे लोगों की तरफ निगाह घुमाई, फिर चला गया। आए दिन के बम धमाके जिनकी तादाद में कमी के बजाय इजाफा होता जा रहा था, जैसे किसी ने पटाखा छोड़ा हो। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां एक खुदकुश हमले में 100 जानों के ज़िया के बावजूद बाजार आबाद रहते हैं और सड़कों पर ट्रैफिक उसी तेजी और मामूल से बहता रहता है जैसे ये हादसे जिंदगी का हिस्सा ना हो, स्लो लाइट पर चलते हों। यही वाकया किसी पेट भरे मुल्क में पेश आता तो दहशत और खौफ से लोग घरों में मकीद हो जाते। लेकिन पाकिस्तान जान बचाने की खातिर घर बैठ जाने जैसी अयाशी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जीना है तो रोजमर्रा की मुशक्कत लाजिम है, रोटी के लिए बाहर निकलना है। आज मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हुए 20 दिन गुजर चुके थे। जाड़ों की मुरझाई धूप और जर्द रू चांदनी इस बार गुजरने वाले वाकया को एक दफा और गुजरता देख रही थी। क्या कोई कहीं खात्मा है या हम उसी चक्कर के गिर्द गोल घूमते रहेंगे? आंखों पर पट्टी बांधे कोल्हू के बैल की तरह कोई हमें हकाता जाता है। सिर्फ हमारे गले में बंधी घंटियों की टन टन बताती है सफर जारी है। सफर खत्म नहीं हुआ, मंजिल दूर है। मंजिल है भी कि नहीं? कैसर ने आज सुबह ही बड़े कर्ब से बताया था। आज सारा हक भी गिरफ्तार कर ली गई हैं। माल पर जुलूस के दौरान उनके साथ बहुत से और भी गिरफ्तार हुए। काले कोटों वालों से जेलें भर गई हैं। योम स्याह से अब तक हर रोज क़यामत की एक घड़ी गुजरती है। लेकिन ये कैसर की मासूमियत है कि उन सारे गिरफ्तार शुदगान में उसको तड़पाया तो सिर्फ सारा हक की गिरफ्तारी ने। योम निजात से योम स्याह तक पता नहीं इस सारे अरसे में कितनी आहनी फसीलें गाड़ी गई हैं। रेंगती सिसकती हिचकियां लेकर जिंदगी करती। नाम नेहाद जमहूरियत बार बार झटके खाकर रुक जाती, जैसे वो ट्रेन्स रुकती थीं जो नए वतन में आने वालों को लेकर चली थी। चलती थीं और रुकती थीं, फिर झटके खाती थीं और नीम शिकस्ता बदनों को निढाल हालत में लेकर दाखिल होती थीं। ऐसे में जब अभी हवास बहाल भी ना हुए थे, आप नई जगह से ठीक से मानूस भी ना हो पाए थे कि फिर मार्शल लॉ का धक्का लगा था। ऐसे ही धक्के आकाओं से खाते हुए अपनी जमीन पर मुंह उठाकर जीने के मुश्किल से काबिल हुए थे। 10 साल मनमानी करते और मनमानियों के जश्न मनाते हम एक और मार्शल लॉ में दाखिल हो गए। जैसे एक सुरंग से निकलकर ट्रेन किसी और तारीख सुरंग में से गुजरने लगती है। हुक्मरान इस तारीकी को रोशनी बनाते हैं। अदालतें जुल्म को इंसाफ कहती हैं। पीछे की तरफ भागते खुशामदी, कसीदा पढ़ते, हिजफ बयान करते 12 साल इस दौर से गुजर के आधा मुल्क गंवाकर हथियार फेंक कर फिर ट्रेन ने विसल दी। सफर शुरू हुआ छोटे स्टेशनों से, जंक्शन तक 11 साल का एक और तवील आमराना अहद। निसफ हिस्सा इमरजेंसी, मार्शल लॉ, जेल, धांधली, चोर बाजारी, लूट मार, गुंडागर्दी। बकिया निसफ जिंदगी से बेजार, ऊँगती सिसकती उकताई हुई जिंदगी गुजारती एक और नाकारा जमहूरियत, लूटने वाले को तरसती। सफर दर सफर, इमरजेंसी दर इमरजेंसी, आने वाला आता भी मार्शल लॉ से है, जाता भी मार्शल लॉ से है। फिरौन समझता था वो खुदा है, उसको कायम रहना है। वो आता है तो उसको यकीन होता है वो फिरौन है, उसको दुनिया के खात्मे तक रहना है। फिर जहाज गिरता है या मोड़ दिया जाता है। दूसरा कोई फिरौन नए खुदा के रूप में। हम नस्लों से मायूस हैं, उम्मीद बंधती है, लेकिन फिर नया आदमी नई मायूसी ले आता है। पुरानी नस्ल के सब अफराद जेल में थे, हर सुना हुआ नाम गिरफ्तार था। ऐसे में वो लोग सड़कों पर आए जिन्होंने कभी जमीन पर कदम नहीं रखा था। पाकिस्तान में लोगों ने उनसे कभी कोई उम्मीद भी नहीं लगाई थी। अमीर घरों के अमेरिकन ज़दा नौजवान अंग्रेजी बोलते, उर्दू में अटकते, पिज़्ज़ा बर्गर पर पले लेकिन बेहद काबिल, बहुत ज्यादा पढ़े हुए, मुल्की हालत पर कुड़ते, जिनका जज्बा हुब्बुल वतनी कतई मशकूक नहीं था। एक वो तबका भी था जिसने फरार हासिल कर लिया था। वो कब के मुल्क छोड़कर जा चुके थे। आसाइश की महफूज जिंदगी गुजारते अमेरिका कनाडा में बैठे पाकिस्तान के फुटपाथों पर हंसते, ट्रैफिक के कानून ना जानने वालों का तमस्खर बनाते, खुद को इंटरनेशनल शहरी समझते, इंडिया और इसराइल का दिफा करते। वो 7 समंदर पार से पाकिस्तान को तमीज सिखाते रहते थे। ऐसे वक्त में इस नागहानी के खिलाफ पहला जुलूस लम्ज से निकला, फिर कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी के उस्ताद और शागिर्द शरीक हुए और पूरा मुल्क एहतजाज के लिए खड़ा हो गया।
कराची में खामोशी थी। ये वो शहर था जिसने हर अहद में हर मार्शल लॉ के खिलाफ अलम उठाया और पहली गोली खाई थी। अब वो मसलहत पसंद हो गए थे। चूंकि उनका इक़्तिदार मार्शल लॉ से मंसूब होता था, लिहाजा वो मार्शल लॉ के खिलाफ कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनते थे। सरहद में खुदकुश बम धमाके थे। भेड़ बकरियों की तरह मजलूमों को ज़िबा करते, नामोस के नाम पर फखरिया कत्ल करते। बलोचिस्तान जिंदगी करने को तरस रहा था। ऐसे में बच्चों की तरह महफूज और मासूम दारुल हुकूमत भी सरगर्म था। कभी लाल मस्जिद, कभी सुप्रीम कोर्ट। जिस जगह किसी के बाहर आंगन में उगा फूल कोई नहीं तोड़ता था, वहां बेगिनती जानों का ज़िया किया गया। टीवी बंद हो गए थे, हालांकि लोगों की वाहिद उम्मीद अब टीवी रह गया था। कोई एंकर पर्सन किसी उम्मीद का यकीन दिलाता है, किसी कल की कोई अच्छी आस, और फिर से मायूस कौम जीने की ख्वाहिश में जाग उठती है। इलेक्शन होगा तो सब ठीक हो जाएगा। अगर इलेक्शन ना हुआ, अगर सब ठीक ना हुआ। अबीर कितनी देर से एजाज के बराबर बैठी आने वालों का इंतजार करती तारीख का सफ़ा बन गई थी। एजाज ने कोई हंगामी मीटिंग बुलवाई थी। उसकी ख्वाहिश थी रिजल्ट के फाइनल होने से पहले वो अपने ग्रुप के लोगों को इकट्ठा करके आइंदा के लाइहा अमल से आगाह करे। मायूसी भरी फिजा से निकलने का बस एक ही तरीका था, अपने हिस्से की ईंट लगाने का। उसे एक छोटी सी तकरीर करनी थी और वो उस तकरीर को किसी हाइड पार्क में नहीं ले जा सकता था। मुमकिन हो और सब जमा हो सके तो कैंपस ही बेहतरीन जगह थी, मगर यूनियन और इलेक्शन की बंदिश के बाद 20 सालों से यूनिवर्सिटी पर मुख्तलिफ ग्रोहों का कब्जा था। इलेक्शन चाहे मुल्क में हो या इदारों में, लोग अपने अपने अमाल के लिए किसी के आगे जवाबदेह होते हैं। लेकिन जब ये तरीका बंद हो जाए तो ताकतवर छा जाता है। कब्जे की हवस, इक्तदार की ख्वाहिश जुल्म ज्यादती से ही मुमकिन हो सकती है। जहाँ कानून ना हो वहाँ जंगल के कानून चलते हैं। जो सबसे जालिम है, इख्तियारात उसके, और इख्तियारात वाले अपनी डोई से बेइख्तियारों को हाँकते जाते हैं। किसी भी जगह कोई छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी तकरीब मुनक्किद हो तो वो सीना तान के सामने आ खड़े होते हैं। आपने हमसे इजाज़त ली है? यूनिवर्सिटी में कोई अपनी सालगिरह का केक भी उनकी इजाज़त के बगैर नहीं काट सकता। उनको अपने नज़रियात के हामी उस्तादों की तायीद हासिल है। एसटीसी में किसी फंक्शन का तसव्वुर मुहाल था। ऑडिटोरियम ख्वाबो ख्याल हुआ। जिला वतन एक मोर्चे की तरह वीसी की स्पेशल इजाज़त से चलाया गया, लेकिन जितनी देर जारी रहा मुंतजमीन खौफ से कांपते रहे। कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आता तो लगता इसके पीछे नारे मारता एक जलूस है जो ड्रामे की ईंट से ईंट बजा देगा। लेकिन चूंकि वीसी साहब पहली सीट पर विराजमान थे, लिहाजा लोग जो इस नीयत से दाखिल होते थे मुअद्दिब होकर आखिरी सीटों पर बैठ रहे थे। लेकिन उसके बाद से एक तसलसल के साथ धमकी आमेज लहजों में उनको उनके अंजाम से हमकिनार करने की इतलात मौसूल होती रहती, जिस पर अमली जामा पहनाते उनको जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती थी। कैंटीन में चूंकि लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग नशिस्तगाहें थी, लिहाजा किसी मीटिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सुना है 77 तक लड़के लड़कियां एक ही जगह बैठते थे, लेकिन क्योंकि अब उनके इखलाक खराब हो चुके हैं या उनके खराब हो जाने के अंदेशे हैं, लिहाजा उनको एक दूसरे से दूर कर दिया गया है। अगर डिपार्टमेंट से बाहर लड़के लड़कियों के साथ घूमते नजर आए तो उनकी टांगों को उनके धड़ से अलग कर देने की खुशगवार इतला दी जाती है, और इतला कुनिंदा जानता था किसी भी वक्त उसकी ये टांगें उसके वजूद का हिस्सा नहीं रहेंगी। उनके हेड को भी वक्तन फवक्तन ऐसी धमकियां मिलती, लेकिन पता नहीं वो किस जुर्रत से शोबे में ऐसों का अमल दखल रोके हुए थे। इम्तिहानात के दौरान टांगे तोड़ देने वाले गुमनाम खतों और मैसेजेस का अंबार लग गया था। हत्ता कि इस ज़हनी कोफ्त से वो इम्तिहान की तैयारी मुकम्मल तवज्जो से नहीं कर सकी। कभी खत उस्मान के हाथ लग जाता तो वो फाड़ कर फेंक देता। ऐसे खतूत डाक से आते थे और तालबा के बजाय उसके किसी घरवाले के नाम होते। उसमें तफसील से बताया जाता उनकी बहन या बेटी बेराहरो हो चुकी है, वो हर वक्त नामहरमों के दरमियान घिरी बेहिजाबाना फिरती है। आपकी नाकस तरबियत ने पूरी नई नस्ल को तबाह कर दिया है। आपकी बेटी तो जहन्नुम में जलेगी ही, ऐसे माँ बाप भी करोड़ साल दोज़ख में जलाए जाएंगे जो अपनी औलाद की इस्लाह करने से कासिर रहे। लिहाजा ऐसे मुर्तदों का कत्ल जायज़ और वाजिब है। कभी डाक में सिर्फ एक सवाल लिखा होता, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी पैदाइश का मकसद क्या है? अगर वो बताना भी चाहती तो किसे बताती? खत तो हमेशा गुमनाम होते, भेजने वाले चिलमन के पीछे से दुश्नाम तराजी करते। ऐसे ही खत रजा भी फाड़ फाड़ कर आग दिखाता रहता था। अबीर कैंपस पहुंची थी तो एजाज नहर किनारे उदास बुलबुल की तरह तन्हा टहनी के बजाय बेंच पर बैठा फूस की हट से चाय पी रहा था। वो उसके आने पर बजाय खुश होने के मुस्तरिब सा हो गया था। मेरा ख्याल है मुझे मीटिंग बुलाने के बजाय मैसेजेस कर देने चाहिए थे। उसने चाय की प्याली पर आई मलाई वाली झल्ली को फूंक मारकर एक तरफ करते घूंट भरा।
लेकिन तुम दोनों के फोन बंद पड़े थे। रजा ने भी हस्बे आदत फोन नहीं उठाया। मैं तुम्हें मना करना चाहता था कि मत आओ, लेकिन कल रात ही को तुम्हारी ईमेल थी कि आओ और वहाँ बहुत फजूल मैसेजेस आ रहे थे। मैंने सिम तब्दील कर ली और रजा मीटिंग में हो तो सेल ऑफ कर देता है। एजाज का चेहरा हल्का सा पीला हुआ। इम्तिहान हो जाने के बाद वो लोग कहते हैं तुम आउटसाइडर हो, हम यहाँ आए तो वो हमारा मुंह सुझा देंगे। हाय, तुम डर रहे हो? हाँ, मैं डर रहा हूँ, उसने प्याली वापस फ्रिज में रखते बड़े शांत लहजे में कहा। मैं हर वक्त उनके आसपास रहता हूँ और रोज कुछ ना कुछ होते देखता हूँ। हुमैरा क्यों नहीं आई? वो नहीं आ सकती थी, उसने अपनी अम्मी को कहीं लेकर जाना था। जुलूस में बहरहाल वो मौजूद होगी। फिर तुम्हें भी तन्हा नहीं आना चाहिए था। तुम्हें क्या हो गया है एजाज? तुम रजाकाराना तौर पर ही पत्थर के जमाने की तरफ जा रहे हो। मैं खुद आती और खुद जाती हूँ। कहाँ हैं बाकी सब लोग? तुम देख रही हो इस वक्त सिर्फ मैं और तुम बैठे हैं, हालांकि कई लोगों ने आने का वादा किया था। है तो उन्होंने वादा क्यों किया था? क्या वाकई कोई भी नहीं आएगा? नहीं, आ जाएंगे, 6 या 7 तो आ जाएंगे। हमें यहाँ से इतने ही लेकर चलना था, लेकिन उनकी तादाद सैकड़ों तक नहीं पहुंचेगी। क्या वो सब बुज़दिल थे? कैसर कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? कैंपस की तरफ गया था, प्रीवियस के कुछ लड़के उसके साथ आ रहे थे, आता ही होगा। याद करो एजाज, जब हमने जिला वतन शुरू किया था, लेकिन आखिर में सब ठीक हो गया। लेकिन ये इस तरह नहीं है। कुछ को फेल करने से डराया गया है, कुछ के माँ बाप को ऐसी खौफनाक धमकियां दी गई कि उन्होंने अपने बच्चों को कमरे में बंद कर दिया। कुछ को उम्र भर रोजगार ना मिलने से आगाह किया गया और उसमें कुछ गलत नहीं। खोखे वाला लड़का भाप उड़ाती चीनी और मलाई से तरबतर चाय का छोटा सा कप उसके लिए ले आया था। कितनी देर से चाय की 2 प्याली उन दोनों के दरमियान बेंच पर रखी भाप को फिजा में गुम किए यख हो रही थी। नहर के आर पार रवां सड़कों पर ट्रैफिक का तूफान मचा था। नहर का पानी गदला और कीचड़ भरा था। दरख्त की टूटी शाखें, खुश्क पत्तों और घास फूस का ढेर उसकी सतह के ऊपर ऊपर तैर रहा था, जिसमें हवा भरे प्लास्टिक के खाली थैले पिचके हुए गुब्बारे की तरह डोल रहे थे। गुड़गुड़ करती शोर मचाती गाड़ियां इस तेजी से गुजर रही थीं जैसे किसी वीडियो गेम का मंजर। बस रिमोट उसके हाथ में नहीं था। कभी कभी हॉर्न के तेज शोर में जुमला अनसुना रह जाता। चारों तरफ गुंजान आबाद बस्तियां थीं। अपने घरों से निकलते और पलटकर घरों को वापस जाते आते लोगों का इज़्दिहाम। वो बेंच पर बैठी सड़कों पर ट्रैफिक की इस तेजी को दिलचस्पी से देखती रही। उनके 2-4 साथी आए और रेशाज़दा लड़खड़ाती बेंचों पर कदम जमाकर बैठ रहे। एजाज कागज खोलकर बैठ गया। एक जुलूस निकालना है, पुरअमन, किसी तशद्दुद के बगैर। किसी भी कीमत पर इश्तियाल में नहीं आना। हम एक तारीख रकम करेंगे बिला इश्तियाल एहतजाज। वो नक्शा खोलकर समझा रहा था कहाँ से गुजरना है, माल के किस हिस्से में महफूज रहा जा सकता है। असेंबली चैम्बर और गवर्नर हाउस से बचकर निकलना है। हम पर पथराव हर कीमत पर होगा। लड़कियों का क्योंकि जुलूस के इस हिस्से से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए वो औरतों के हिस्से की तरफ जाएंगी। मीनार के पास अगर सारा हक बाहर होती तो वो बेहतर तरीके से लीड कर सकती थी। उनकी गैर मौजूदगी में ये काम तुम्हें करना है। याद रखना, पुलिस औरत हो या मर्द, वो बेदरेक बाल खींचते हैं, 72 मारकर वैन में डाल देते हैं और ले जाकर हवालात में बंद कर देते हैं। बेवजह गिरफ्तारी पेश नहीं करनी। हमारी तादाद पहले ही मुख्तसिर है। सारा हक ने अपने मोबाइल से अबीर और हुमैरा के लिए मैसेज भेजा था। आमतौर पर वो मोबाइल छीन लेते हैं। सारा हक का छीना होता तो उनकी जिंदगी मुश्किल हो जाती। क्या उन्होंने ये पैगाम हमारे नाम भेजा है? अबीर ने हैरत से पूछा। नहीं, बस उन्होंने कहा था अपनी साथी लड़कियों से कह देना। तब ठीक है, अबीर ने इत्मीनान का सांस लिया। लड़कों का ग्रुप नक्शे पर झुक गया। लड़कियों के ग्रुप में अपने प्रोग्राम पर मुकम्मल इत्तफाक नहीं था। उसमें से कुछ बड़ी सड़क पर पुलिस का सामना करना चाहती थी। इख्तलाफ दर इख्तलाफ, गिरोह दर गिरोह, अवाम का हजूम, लीडर का हजूम। कोई एक लीडर पैदा नहीं होता जो अवाम को साथ लेकर चले। अपने अपने तौर पर जिद्दोजहद करते अवाम, अपने अपने इक्तदार की जंग लड़ते गिरोह, सब शेर की तरह अपने अपने मखसूस दायरों में राज चाहते हैं। देहातों में जागीरदार का राज, उनकी शान में गुस्ताखी करने वालों पर कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं जो उनके गोश्त को हड्डियों समेत भंबोर डालते हैं। किसी गद्दार की इस जसारत के बाद सारे गांव को कान हो जाते हैं, फिर वो किसी के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। अपना हक क्या है वो अजल से बेखबर हैं। शहरों में वजीरों मशीरों के धड़े हैं और ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ का जागीरदार तालिब इल्मों का एक मखसूस तबका है। पूरा मुल्क छोटे छोटे जंगलों में बटा हुआ है। हर बड़ा सांप छोटे सांप को निगल रहा है। अचानक ही अकब से एक भागता हाँपता लड़का उनके नजदीक ठहरा।
وہ اطلاع لایا تھا کیسر کو کسی نے بہت مارا، اسے شدید زخمی حالت میں لڑکے ہسپتال لے گئے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے کیا سنا تھا، وہ جہاں کھڑے تھے اسی طرح ہسپتال کی طرف بھاگے۔ اعجاز اس اطلاع لانے والے سے کیا پوچھتا رہا، واقعہ کیا تھا، سب اس کے کان تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ حادثے کس طرح ہو جاتے ہیں، ایک دم اچانک، آنن فانن۔ وارڈ زخمیوں سے اٹا اٹ بھرے ہوئے تھے، اس میں 2 زخمی بھی شامل تھے جو مال سے پولیس کے ڈنڈے کھا کر لائے جا رہے تھے۔ برآمدوں میں زخمیوں اور بے ہوش مریضوں کے پاس سے گزرتے انہیں ہر چہرے پر کیسر کا گمان ہوتا۔ وہ چلے آئے تھے، پتہ نہیں اطلاع لانے والا درست تھا یا کسی افواہ کے پیچھے لپک پڑا تھا، اور کون جانے وہ کم اطلاع لایا ہو اور ان زخمیوں میں کہیں انہیں اس کا چہرہ ملے ہی نہ۔ سب سے پہلے ابیر ہی کی نظر اس پہ پڑی، اس کے چہرے پہ اس قدر گھاؤ تھے کہ وہ پہچانا نہ جاتا تھا، لیکن پھر بھی پہچانا گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اپنے نزدیک سے گزرتے دیکھا لیکن روکا نہیں کیونکہ وہ مکمل بے ہوش تھا۔ ہسپتال والوں نے ابھی تک اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا، یہ ایک پولیس کیس تھا، ڈاکٹرز نے انہیں آگاہ کیا۔ ایسے کیس یہاں آئے دن آتے ہیں، یہ 2 گروہوں کی آپس کی لڑائی کا نتیجہ ہے۔ سنا ہے کوئی دنگا فساد ہوا تھا، جس کو زیادہ چوٹ لگی وہ ہسپتال آ گیا۔ جب تک پولیس نقصان کا تعین نہ کرے مریض کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ بے خطا بے قصور دونوں میں سے کوئی نہیں تھا۔ جب ہم ایسے کسی مریض کو ٹریٹ کرتے ہیں اور وہ دوران آپریشن مر جائے تو آپ جیسے لوگ ہم پر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ کیسر کی لڑائی ہوئی؟ اس نے آپریشن تھیٹر کی طرف دوڑتے اور اسٹریچر پر گھسیٹ کے لیے جاتے کیسر کو حیرت سے دیکھتے سوچا، لیکن وہ تو بہت صلح جو اور امن پسند آدمی ہے، اس نے زندگی بھر کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اس نے تو ظلم کرنے والوں کا کبھی ہاتھ بھی نہیں روکا۔ وہ تو بچوں کی طرح معصوم، ابھی متاثر ہونے کی سٹیج سے باہر نہیں آیا تھا۔ وہ تو ایسا بھولا لڑکا تھا، جب اس سے بھی کم صحت والے کسی ڈاکو نے اس کا موبائل چھینا تو اس نے بغیر کسی مزاحمت کے اس کو موبائل اور پرس دونوں تھما دیے تھے۔ وہ کہتا تھا اسے لڑنے کا طریقہ نہیں آتا۔ وہ ہراساں حالت میں ڈاکٹروں اور نرسوں کے پیچھے دوڑتے، پھر پلٹ کر پولیس تک آ جاتے۔ پولیس آ گئی تھی، نامعلوم ملزم کے خلاف FIR درج ہو گئی۔ انصاف سے ہم اس سے زیادہ کچھ توقع بھی نہیں کرتے۔ پولیس کہتی تھی 2 فریقین کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی، دوسرا فریق کہاں تھا، دوسرے فریق کو کتنی چوٹیں آئیں یہ بیان میں درج نہیں تھا۔ وہ ہسپتال کے یک برآمدوں میں خون آلود دیواروں سے ٹیک لگائے ہولے ہولے لرزتی رہی۔ کیا واقعہ ہوا؟ کوئی چشمدید گواہ نہیں تھا۔ لڑکے لوگ خون، دواؤں اور انجیکشن کے حصول میں چہار طرف بکھر گئے تھے۔ کیسر کے گھر اطلاع ہوئی یا نہیں، کسی کو اس کے گھر کا علم تھا؟ اس کے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں تھی۔ لانے والوں نے دیکھا برآمدوں کے پاس گھاس پر کوئی اوندھے منہ گرا تھا، اس کے کپڑوں پر جا بجا خون کے دھبے تھے اور ان دھبوں کو دور کرنے کے لیے اسے برساتوں کی حاجت بھی نہیں تھی۔ چہرے پر گہرے کٹ اور نیل کے داغ تھے، جیسے اسے کسی سخت چیز سے بے دردی سے پیٹا گیا ہو۔ لیکن کیوں؟ وہ تو صرف فرسٹ سیمیسٹر کے لوگوں کو لینے کے لیے نہر کنارے سے اٹھ کر گیا تھا، لیکن پھر اپنے ڈپارٹمنٹ سے کئی فرلانگ دور کسی دور افتادہ شعبے میں وہ اوندھے منہ پایا گیا۔ پولیس کا مزید بیان تھا کہ مارنے والے 1 سے زیادہ تھے، انہوں نے اس کے چہرے پہ گھونسے مارے، ان کے ہاتھوں میں کوئی دھات کی چیز تھی جس سے اس کے چہرے کی کھال جگہ جگہ سے کٹ گئی تھی، اس کی ناک اور منہ سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ جب انہوں نے اسے پوسٹ آپریشن یونٹ میں شفٹ کیا، ڈاکٹر اعجاز کو بتا رہا تھا کہ کوئی فریکچر نہیں لیکن چوٹیں بے شمار ہیں، خطرے کی کوئی بات نہیں، شام تک ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کو اس سے غرض نہیں تھی کس نے پیٹا، کیوں مارا، وہ مظلوم تھا یا ظالم، اسے کس سمت میں کھڑا کیا جائے، وہ خود بے ہوش تھا اور واقعہ کی حقیقت بتانے سے قاصر۔ ایک طرف کھڑا چپراسی چاچا بشیر تھر تھر کانپ رہا تھا، اس نے اس کے زخمی ہونے کی اطلاع پاس سے گزرنے والے لڑکوں کو سب سے پہلے دی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ برآمدے میں کسی کی لاش پڑی ہے، انہوں نے ہلا جلا کر دیکھا تو سانس باقی تھی۔ جب لڑکوں نے اپنے استادوں کو اطلاع دی اور ہسپتال لے کر چلے تو چاچا بشیر بھی ساتھ آ گیا تھا۔ لڑکی کا چکر ہوگا۔ چکر لڑکی کا نہیں تھا کوئی، وہ جانتی تھی لوگوں کی کیا سرائیاں بے مقصد تھیں۔ ہم مظلوم کا ساتھ دینے کی بجائے کتنی آسانی سے ظالموں کی صف میں آ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسے واقعات کیمپس میں آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگائے لگائے اعجاز کی طرف دیکھا۔ اس کا ابھی تک کیسر کی بہن سے جہلم میں رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ اعجاز نے اس کا ستا ہوا پیلا چہرہ دیکھا۔ تمہیں گھر چلے جانا چاہیے، اس کو ہوش تو آ جائے۔ ڈاکٹر کہتا ہے اسے رات تک ہوش نہیں آئے گا۔ ٹیوبز اور پٹیوں میں جکڑے اس کے پاس بینچ پر بیٹھتے ابیر نے خواہش کی، کاش۔ اعجاز اس کے قریب ہی بیٹھا رپورٹ تیار کر رہا تھا، اپنا لکھا ذرا سی بلند آواز میں دہراتے۔ لوگوں کو پتا ہے ہم ڈرتے نہیں، لیکن ایک کیسر کو زخمی کر کے ہمیں دکھی تو کیا ہی ہے۔
हमारे साथियों को भी पैगाम भेजा है, इबरत का पैगाम कि उनकी ख्वाहिश और इजाजत के बगैर किसी ने हमें ज्वाइन किया तो उनका यही हशर होगा। वो खुद भी इस हुकूमत के हामी नहीं, लेकिन आपको हुक्म देते हैं कि आपको जो कुछ करना है उनकी मर्जी के ऐन मुताबिक और झंडे के नीचे आके करना है। फिर वो ज़ेरे लब बड़बड़ाते कुछ लिखने लगता जो उस तक नहीं पहुंचा। तुम जरा देर को रुको, मैं ये खबर फैक्स करके अभी वापस आता हूँ, फिर तुम वापस घर चली जाना। अबीर ने उसको सुना या नहीं, उसकी पूरी तवज्जो छोटी सी डिबिया में गिरते ग्लूकोज के कतरों की तरफ मरकूज थी। कोशिश करना घर में किसी को इतला ना हो। घर वाले ऐसी खबरों पर फिक्रमंद तो होते ही हैं, बदगुमान भी हो जाते हैं। जिस किसी ने भी ये हरकत की है उसने आज हमारे जुलूस को तो खोटा किया ही है, लेकिन एक तरह से वो उस जुलूस के खिलाफ ही हुए। उन्होंने आमरों को फायदा पहुंचाया। हाँ, मुनाफिकों का यही कमाल होता है, वो वक्त का इंतजार करते हैं। अगर तहरीक जोर पकड़ जाती है और आमर को हटा दिया जाना यकीनी नजर आ रहा हो तो वो तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यही तहरीक बेजान हो जाए तो आमर के साथ हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं, तहरीक पर डंडे बरसाते हैं। वो लिखा हुआ कागज चौकोर तह करके कमीज की जेब में डालकर चलता बना। मैं 15 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। वो कब से कमरे में अकेली थी, बाहर वक्त गुजर रहा था या किसी एक जगह ठहर गया था। अंदर कतरा कतरा बरसती हयात बख्श पानी की घड़ी थी। इक्का दुक्का उसके साथी दरवाजा खोलकर झांकते, नील जदा सूजी आंखों के बंद पपोटों को देखकर वापस हो जाते। इतने बड़े हादसे को उसने कितनी देर तक तन्हा झेला था। अपने एक अच्छे दोस्त को जख्मों से चूर चूर देखा था। उसके अपने असाब भी लोहे से नहीं बने थे, लेकिन एजाज उसे यहाँ किस तरह खड़े रहने का हुक्म दे गया था। वो बगैर हरकत किए जब से पत्थर की तरह साकत उसके बंद पपोटों के पीछे जिंदगी के आसार देखने की ख्वाहिश में हुक्म की तामील कर रही थी। फिर कोई साथी दरवाजा खोलकर अंदर आया। चूंकि अंदर ज्यादा लोगों को बैठने की इजाजत नहीं थी, लिहाजा वो सिर्फ एक नजर देखकर या अबीर से दरियाफ्त करके आया उसने आंखें खोली थी या नहीं। वो वापस चला जाता। आने वाला दबे कदमों और बे आवाज आया था, लेकिन वापस जाने या सवाल करने की बजाय चुपचाप उसकी पुश्त पर आ खड़ा हुआ था। बे इरादा ही उसने घूमकर देखा और लम्हे भर को साकत हो गई। आने वाले के चेहरे पर तशवीश के आसार थे। किसी गहरी सोच में गर्क वो उसकी तरफ देखता, किसी से मुखातिब भी नहीं था। कितनी तवील खामोशी के बाद उसने धीमी आवाज में पूछा था, आप अकेली यहाँ क्यों बैठी हैं? सवाल करते भी वो मुखातिब की तरफ मतवज्जा नहीं था। तशवीश भी इस नोयत की नहीं थी जो बाहर से आने वाले अमूमन उससे कर रहे थे। एजाज वाकये की रिपोर्ट लेकर अखबार गया है, आता होगा। जब यह हादसा पेश आया आप वहां मौजूद थी? नहीं, उसने किसी तवालत में जाए बगैर मुख्तसर जवाब दिया। और फिर इस वक्त आप यहाँ तन्हा क्यों मौजूद हैं? यह भी अजीब तमाशा है। आप आमरे वक्त के खिलाफ जहाद पर निकली हैं, वो भी किसी की उंगली पकड़कर। कहते हैं औरंगजेब के जमाने में सिपा सालार रेशम और अतलस के लिबादे पहन जेवरात से लदे फंदे 4 कहारों के कंधे पर सवार पालकियों में बैठकर मैदान जंग में उतरते थे। क्या वो अपने भाई से कहे, जरा मुझे कंधों पर सवार जुलूस तक छोड़ाओ, मुझे हुकूमत हटानी है। पुलिस इंक्वायरी कर गई। माथे पर नागवारी की शिकने डाले वो मरीज से ज्यादा तीमारदार की तफ्तीश कर रहा था। पिछले सवाल का जवाब लिए बिना वो अगला सवाल उस पर ठोंस देता था। बरामदे में खड़े रहने से एजाज ने बेहतर समझा कि मैं मरीज के पास बैठ जाऊं। दुरुस्त, आपका MBBS का फाइनल हो गया? लम्हे भर के लिए हैरत से उसने उसकी तरफ देखा। ये क्या अहमकाना सवाल था कि उसको ये भी इल्म नहीं वो क्या पढ़ रही है, या शायद गुफ्तगू तमस्खर की तरफ मुड़ गई थी और वो खुद गालिबन MBBS कर चुका था, क्योंकि फिर जवाब का इंतजार किए बगैर वो उसकी फाइल खोलकर रिपोर्ट्स में गर्क हो गया था। फाइल वापस हैंगर में अटकाते हुए संजीदगी से उसकी तरफ पलटा। चलिए उठिए। उसको इल्म नहीं था वो क्यों उसके साथ ताबेदारी से उठ खड़ी हुई। कभी कभी उसके फैसले ऐसे ही बेख्तियार हो जाते हैं। पर्स का फीता कंधे पर लटकाते वो उठी और ऐसे चली जैसे सोते में मरीज चले। उसने कमरे का दरवाजा खोलकर अबीर को बाहर निकलने का मौका दिया। 2 कदम उसके पीछे धरते वो बाहर बरामदे में मुंतजिर खड़े लोगों के पास रुका। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, तुम अंदर जाओ, मैं अभी वापस आता हूँ। चलिए। एक ही जुमले में उसने बेक वक्त कई लोगों को निपटाया। उसके अंदाज में ऐसा तहकुम था जैसे उसका कहा टाला ही नहीं जा सकता। किस तरह जाएंगी आप? OPD के फुटपाथ पर बैठे मरीजों के लवाहकिन से टकराते कदम बचा बचा कर चलते वो उसके साथ साथ चलता आ रहा था। रिक्शा से, यकीनी जवाब था। वह अस्पताल का गेट छोड़कर बाहर निकले। दरख्तों के पीछे की सर्विस रोड पर उसके हमराह चलता कितने ही खाली रिक्शों को सिरे से नजरअंदाज करता सीधा चलता चला गया।
पता नहीं अब उसे कौन सा रिक्शा पसंद आता है। एजाज को तो शायद कोई बता ही दे कि अगर वो अरशे पर खड़ी नहीं पाई गई जहां उसे खड़े रहने का हुक्म दिया गया था तो उसकी वजह क्या हो सकती है। उसका जहन जैसे नींद की कैफियत में था और आंखें मायूसी से लड़ते लड़ते थक चुकी थी। पता नहीं उसे होश आएगा या नहीं, और कौन जाने वो बचेगा भी। जिन लोगों ने उसे इस हाल में पहुंचाया वो कहाँ जमा होकर फतह का जश्न मना रहे होंगे। इंसाफ कहाँ से मिलेगा। सड़क से एक तरफ वो कितनी देर तक और कितनी दूर तक अपने आप में गुम पैदल चलते रहे। अबीर का सारा ध्यान जख्मों और पट्टियों में जकड़े कैसर की तरफ था। कितनी देर की कशमकश के बाद उसने गहरा सांस खींचा। अब क्या होगा? अबीर ने किसी गुम सी कैफियत में खुद से पूछा। अल्लाह करम करेगा, ठीक हो जाएगा। उसकी आवाज मध्यम थी, जैसे उसे यकीन था यह सवाल देर से सही लेकिन पूछा जरूर जाएगा। एक और तवील खामोशी, चंद और कदम। किस कदर जुल्म है और कोई पूछने वाला नहीं। आपको लगता है ये जुल्म हुआ है? क्या आप इस जुल्म से लड़ने के लिए नहीं निकले? हम भी गलत होते हैं, हमसे निमटा भी गलत तरीके से जाता है। अपनी बहुत सारी गलतियों में ठीक क्या है, इसका तो फैसला करना है। वो चुप हो गया था। अचानक कोई खड़खड़ करता रिक्शा पास से गुजरता तो उसे लगता वो हाथ देकर रोक लेगा, लेकिन वो पलटकर रिक्शा की तरफ देखता भी नहीं था, जैसे किसी सवारी से उसे कोई सरोकार ना हो। पता नहीं वो सड़क किनारे खस्ता हाल फुटपाथ पर कब से चल रहे थे और उनको कहाँ तक चलना था। अबीर वक्फों से कोई सवाल तो जरूर करती थी, लेकिन ऐसे जैसे कोई ऊंची आवाज में सोचता हो, किसी से जवाब की तवक्का के बगैर। वो जवाब देता था, लेकिन यूं जैसे कोई सवाल करने वाला ना हो, एक दूसरे के वजूद से बेखबर, अपनी अपनी जात में गुम। पता नहीं वो कब से चले थे और कहाँ तक चले आए थे। हम ज्यादातर बुरे मौकों पर क्यों मिलते हैं? फारूक ने इसी तरह फिजा में देखते जैसे कोई मुखातिब ना हो खुद से सवाल किया। एक बात बताएंगे? वो खुद फरामोशी की कैफियत से निकले बगैर धीमे से बोली थी। उस दिन उस हुलिये में हमारे घर आने की क्या जरूरत थी? करीम बी को तो आप लोग सीआईडी में भर्ती करवा दें, या उनके टैलेंट का ज़िया है कि वो बगैर कशमकश के शीर खुरमा बनाए। आप बात टाल रहे हैं। वो चलते चलते ठिठक कर रुक गई। लेकिन आप खफा नहीं लग रही, सिर्फ सवाल कर रही हैं, वो भी अजराहे तजस्सुस। ज्यादा सवालात मत कीजिए। उस दिन उस्मान रजा बता रहे थे करीम बी को सवालात भी पसंद नहीं है। वो उसी तरह रुककर खड़ी रही। फारूक अपनी बात की रवानी में 2-4 कदम आगे निकल गया था। उसने पलटकर जिद्दी बच्चों की तरह अड़ी करते उस लड़की की तरफ देखा। किसी दिन शायद आपको खुद वजह पता चल जाए, शायद मैं ही बता दूं, या शायद मेरे इस तरह आने की वजह पूछना आपके लिए अहम ही ना रहे। आप रुककर सड़क पर खड़ी हो गई हैं, कुछ बच्चों जैसी हमाकत नहीं। आपकी गाड़ी कहाँ है? उसका लहजा सख्त हो गया था। अस्पताल की पार्किंग में। क्या मतलब? फिर आप इतनी दूर तक पैदल क्यों चले आ रही हैं? आपने कहा था आप रिक्शा लेंगी। आज हुमैरा भी नहीं है। पिछली सीट पर बैठेंगी तो लोग समझेंगे मैं आपका ड्राइवर हूँ। इलावा अजी आपने शायद नोट नहीं किया, हम पिछले 20 मिनट से चल रहे हैं। कार ये फासला शायद 2 मिनट में तय कर लेती, और आपने इस वक्त को तूल देकर क्या कमाल कर डाला। उसने बदमिजाजी से बड़बड़ाकर पूछा। लम्हे का काफी होना आपकी मंतक है, मेरी नहीं। एक झपके से अबीर ने अपने चेहरे पर हिद्दत महसूस की। शायद गालों पर खून छलका था। वो वाकई खुद को तमाशा बना रही थी। कुछ सोचे बगैर गैर महसूस तरीके पर कदम बढ़ाते हुए फिर उसकी हमराही में आ गई। आज यहाँ एक मारूफ सड़क है जिस पर से गुजरने वाली गाड़ियों की रफ्तार किसी सरफिरे के सर्वे के मुताबिक 840 फी मिनट है। नहर यहाँ हमेशा से बहती आ रही है, जाने किन किन जमानों से मौजूद है। किसी जमाने में यहाँ कच्ची राहदारी होती होगी जिसे नहर की पटड़ी कहा जाता है। ट्रैफिक के इस अजदहाम के बजाय चरख चूं करती बैलगाड़ियां चलती होंगी जिन पर आवारा कुत्ते दीवानावार भौंकते होंगे। यहाँ जो एक अजीम शान कॉलोनी का देव हैकल गेट है, गेहूं के खेत होते होंगे। एन इस जगह जहाँ वो पीला मकान है किसी के खेतों की हद शुरू होती होगी। जब किसान सुबह सुबह उठकर अपना हल और फल लेकर खेती बाड़ी के लिए निकलता होगा तो यूं ही हमराही के लिए उसके साथ कोई ना कोई चल देता होगा। अभी उजाला फैलता नहीं होगा और उन कदीम दरख्तों पर तोते शोर मचाते होंगे। उसकी हमराही के लिए आता उसका कोई साथी किसान, उसका कोई अजीज या कोई पसंदीदा खातून। यूं ही 2 सराहट के लिए चंद कदम साथ चलते। उसने रुककर गहरा सांस लिया। वाकई लम्हे अहम होते हैं, लम्हों में हम सदियों से गुजर आते हैं। तेज धार तूफानों की तरह गुजरती ट्रैफिक के दरमियान में खड़खड़ करते रिक्शे को दफतन हाथ फैलाकर रोका। अबीर के लिए दरवाजा खोलते उसने ड्राइवर की तरफ झुककर कहा,
मॉडल टाउन। इससे कबल के वो रिक्शा में बैठती उन्हीं कदमों पलटकर वो उस रास्ते पर वापस हो लिया जहां से पैदल चलता आया था। वापसी का सफर किसी साथी किसान, किसी अजीज, किसी पसंदीदा खातून के बगैर शायद ज्यादा खुशगवार ना हो। माय डियर शहरयार, पिछले हफ्ते तुम्हारे कहने के मुताबिक फौजिया का अकाउंट खुलवाने उसको बैंक लेकर गई थी। इत्तेफाक से वो आईडी कार्ड की कॉपी ले जाना भूल गई। इन दिनों बहुत सी चीजों की एहतियात की जा रही है, हालात भी कुछ अच्छे नहीं। जुबानी जमानत के बावजूद उसका अकाउंट नहीं खुल सका। कुछ मैनेजर से उसकी तल्ख कलामी भी हुई, लेकिन नतीजा कुछ वसूल नहीं हुआ। अगले दिन फिर उसको लेकर जाना था, लेकिन उसी ने एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। तुम कैसर को जानते हो ना, वो जो हमारे स्टेज प्ले में सैलानी बना था। उस दिन हमें असेंबली चैम्बर के सामने जुलूस निकालना था, पुरअमन, और पुरअमन रहने की हिदायत हमें सर फैसल से एजाज तक एक एक फर्द ने दे दी थी। उसी दिन यूनिवर्सिटी से एक बड़ा जुलूस निकलना तय हुआ था कि हम सब खवातीन यहाँ से छोटे छोटे ग्रुप की शक्ल में और मुख्तलिफ वक्तों में माल तक पहुंचेंगे। जुलूस के लिए हमें एक जगह इकट्ठा होना था। अलबत्ता एजाज वगैरह का माल से आगे गवर्नर हाउस तक जुलूस में शिरकत का इरादा था। उस दिन का ये जुलूस दरअसल तुम तरक्की पसंद समझते हो ना, उनकी तरफ से कॉल किया गया था। इसमें रजत पसंद शामिल नहीं थे। उस दिन उनका जुलूस निकालने का कोई मंसूबा भी नहीं था। कैसर फर्स्ट सेमेस्टर के लोगों से मिलने गया जिन्होंने उसे डिपार्टमेंट में आने को कहा था। वह भी सीढ़ियों के पीछे ही था कि अचानक कहीं से 7-8 लड़के उसके गिर्द घेरा डालकर खड़े हो गए। उन्होंने उसे जबरदस्ती घसीटकर पास खड़ी एक कार में डाला और अपने डिपार्टमेंट से बहुत दूर हॉस्टल की तरफ निकल गए। कैसर के किसी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। कैसर समझता रहा कोई चोर डाकू है, और वो ठीक समझ रहा था। उन्होंने उसे वहां से ले जाकर एक कमरे में लॉक कर दिया। बशीर नामी पियोन को ताले के बाहर हिफाजत के लिए खड़ा किया। एहतियातन उसको 2-3 थप्पड़ भी मारे। वो बूढ़ा आदमी लड़खड़ा कर गिरा तो उसको धमकी दी, यहाँ पहरेदारी के लिए खड़े रहो, अगर ये भागा तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तो चले गए और जाने कहां से 15-20 अजनबी चेहरों और अजनबी हुलियों वाले लोग आ गए, जिन्होंने कमरे में घुसकर उसको मुक्कों, घूंसों और हाकियों से इतना मारा कि वो नींद जान बेहोश होकर गिर गया। चपरासी बशीर ने उसकी ये हालत देखी तो लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया। चपरासी कितने दिन चुप रहा, फिर उसने मुंह खोल दिया। वो कहता है ये यहाँ का रोजमर्रा का काम है, ये लोग खुद नहीं मारते, पहले कमरे में बंद करके ताला लगा देते हैं और चले जाते हैं। फिर बाहर से कुछ लोग आते हैं जिनको कोई नहीं पहचानता, क्योंकि वो तालिब इल्म नहीं होते। वो मिलकर उसकी हड्डियां तोड़ देते हैं। आज तक कोई सबूत नहीं मिला। जिन पर शक किया जाता है या जिनके साथ आखिरी दफा उसको देखा गया हो, वो अमूमन वारदात के वक्त हेड के कमरे में या लाइब्रेरियन के साथ किसी किताब की तलाश में पाए जाते। पुलिस इस मामले से हमेशा की तरह लाताल्लुक रही। उसने वही बयान दिया जो यूनिवर्सिटी में होने वाले हर ऐसे हादसे पर देती है। कैसर जहां जख्मी पाया गया उस शोबे का तालिब इल्म नहीं था, लेकिन वो किसी लड़की के ताक़ुब में अक्सर यहाँ आता था। उस लड़की ने उसकी शिकायत लगाई। उसको कई मरतबा मना किया गया और समझाया गया, लेकिन वो बाज ना आया। हत्ता के लड़की के भाइयों ने मंसूबा बनाया और मुलजिम की खूब ही दुर्गत बनाई। वो लड़की कौन थी? अमूमन उसका कोई नाम नहीं होता। बदनामी के खौफ से वो पुलिस के सामने पेश भी ना होती। कम अज कम पुलिस के बयान में यही लिखा होता है। भाई यूनिवर्सिटी में कैसे दाखिल हुए, उनको कैसे पता चला कैसर उस वक्त कहाँ होगा, यहाँ भी पुलिस का रिकॉर्ड खामोश है। अब चूंकि ये मामला खानदान की इज्जत और वकार का है, लिहाजा महकमा इज्जत और नामूस की खातिर खानदानी मामले में मुदाखलत नहीं करेगा। कैसर बहुत दिन जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहा। हम दिन रात उसके लिए दुआएं करते रहे। फिर उसके वालिदैन उसको ले गए। उन्होंने जाते हुए बयान दिया कि यह महज एक हादसा था जिसमें किसी की बदनीयती का कोई दखल नहीं। वो किसी को नहीं पहचानते, उनका कोई दुश्मन नहीं, और उन्होंने ना किसी के खिलाफ पर्चा कटवाना है। हालांकि चाचा बशीर ने उन लड़कों को जो अगवा करके लाए थे वीसी से निशानदेही कर दी थी। वीसी उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहता था। चाचा कहता था जान चली जाए, जान है भी कितने दिन की, लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज जरूर उठाऊंगा। एक उम्र से ज्यादती होते देख रहा हूं, अब नहीं सहा जाता। कैसर के वालिदैन ने कोई एफआईआर दर्ज करवाने से इनकार कर दिया और कैसर को किसी शिनाख्त ग्रेड की इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा उन्हें कैसर के रिजल्ट से भी कोई दिलचस्पी नहीं, वो जब भी आए चाहे ना भी आए। बड़ा अच्छा मौका था अगर बुजुर्गों ने हस्बे रिवायत बुज़दिली ना दिखाई होती। अब वो जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे अपने अज़ाइम से बाज नहीं आएंगे। और ये पैगाम तो उन्हें खूब दिया गया कि वो जो चीज चाहे करते रहें, उनकी कोई पकड़ नहीं।
یہ عجیب بات ہے کہ اتفاق سے ہی اگلے روز چاچا بشیر ہسپتال داخل ہوئے۔ وہ کلاس رومز کی چھت کے جالے صاف کر رہے تھے کہ وہ سیڑھی سے نیچے گرے۔ ان کو جگہ جگہ چوٹیں آئیں، حتیٰ کہ ان کے دائیں ٹانگ کی ہڈی کئی جگہ سے ٹوٹ گئی۔ ان کا اصرار تھا، ان کا یہ بیان کسی جھوٹ یا مصلحت پر مبنی نہیں ہے۔ شہریار، میں نے وہ چند گھنٹے جب کیسر موت سے قریب اور زندگی سے دور ہسپتال میں داخل تھا، اس کے پاس بینچ پر تنہا بیٹھ کر گزارے۔ اعجاز نیوز دینے چلا گیا تھا۔ میری زندگی کا خوفناک ترین تجربہ تھا۔ ایک زخموں سے چور چور پٹیوں میں جکڑا آنکھیں بند کیے شخص وقفوں سے سانس لیتا تھا۔ وہ شخص آپ کا دوست بھی ہو تو بہت عجیب محسوس ہوتا ہے شہریار کہ کیا وہ اگلا سانس لے گا، یا جب اس کا سینہ اوپر ہوا تو وہ آخری سانس تھا۔ میرے ساتھ حمیرہ بھی نہیں تھی۔ میں نے دل سے دعا مانگی، یا اللہ کوئی مدد بھیج، اے کاش مجھے اس خوفناک تنہائی سے بچا، اے کاش۔ اچانک ٹائپ کرتا اس کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے کسی وجہ کے بغیر ادھورا ہی خط سینڈ کر دیا۔